Hello students of standard 10. Once again I'm in front of you with one more forms of power sharing. In today's video we will discuss about the power sharing among different levels of government. In last video we have discussed about different organs of government at parallel level, right? But you will see in this form of government the government is just distributed, the powers among the government just distributed at different level. Now it may be possible that in your mind there is question just running that why there is need of sharing or dividing the power at different level, right? Whenever we will talk about the government just working for whole nation, whole country. So one government at union level or top level cannot see the actual condition of every peoples residing in different regions or different community or different parts of whole nation. So it is necessary that each and every people's need and requirement and want must be fulfilled. Then the objective of democracy be successful. किसी देश में, किसी कॉर्नर में, किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी सारे लोग हैं, सभी लोगों का डिजायर और वांट जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वो कंट्री में डेमोक्रेसी वहाँ का सक्सेसफुल। इस और एक लेवल में डिफरेंट ऑर्गन के माध्यम से इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉनिटर एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिटीजन्स ऑफ नेशन. So the powers are just divided into different level of government, means at different levels, right? At different level there were formation of the government, and this happens for this purpose that from every level, right, from every level the people will be monitored and taking care, राइट. एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप जहां पे रहते हो आपके एरिया की सर्कमस्टांसेस क्या होगी, डिफरेंट होगा. वहीं पर अगर सर्कमस्टांसेस लोगे महाराष्ट्र का, उस स्टेट का, तो सर्कमस्टांसेस दूसरा है. वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशंस, नीड, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेट्स, सीजन, सब कुछ अलग है. तो एक ऐसा रूल्स जो दिल्ली से गवर्न होती है, क्या सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो अगर वो डिजाइन करता है या यूनिफॉर्म लॉ डिजाइन करती है तो क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा? क्या उससे सभी लोगों का कल्याण हो सकता है? तो शायद आंसर होगा नहीं. हम बात करते हैं सर्कमस्टांसेस दिल्ली का, तो दिल्ली का सर्कमस्टांसेस लें और हम अरुणाचल प्रदेश का लें. दिल्ली का सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि वहाँ पर काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखें तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, बहुत रेयर है. तो दोनों जगह का इसका मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट है. तो जो पॉलिसी अगर दिल्ली के लिए बनाया जाए, वो पॉलिसी अगर हम अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बना दें तो क्या ये जस्टिफिकेबल होगा, तर्क संगत होगा, न्याय संगत होगा? निश्चित रूप से नहीं होगा. इसलिए डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए जो कि अपने अपने एरियाज के प्रायोरिटी पे वो काम कर सके, राइट. सो सच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग form of government was designed for this purpose, that whatever the peoples living in different regions will be
taking care properly. And as per the requirement and circumstances, different government just working at regional level just make law for them appropriate. ठीक है, इसलिए ये सिस्टम डिजाइन, और ये सिस्टम डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल के लिए आप आइडियल कह सकते हो. नाउ देयर इज क्वेश्चन अराइजिंग हियर, what the government just working at the regional level or the state level will just come under the union level, right? So this is very thinkable question. If the state government will just working under the union government, then it may be possible that union government just prescribes to state government, and whatever the desire and wants of the union government will have to follow to state government. Then you can say there is not independency of the working for different level of government. So what will happen in the constitution, it was made clear that the state government will not work under the union government, right? We will discuss much more, which we'll see on the board whatever I just written, and after that I will discuss it. पहले हम लोग थोड़ा सा देखें बोर्ड पे हम लोगों ने क्या लिखा है. तो इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं. ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स के भी नाम से जानते हैं. ठीक है, इट्स अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. मीन्स वट एवर आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, मीन्स गवर्नमेंट विल बी एट डिफरेंट लेवल, बट दे विल नॉट वर्क अंडर द अनदर level of the government, right? They have independency to make law and work and rule themselves. अपने स्टेट के लिए अपने कानून बनाने के लिए, अपने स्टेट के लिए कानून बनाने के लिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा. किसी यूनियन गवर्नमेंट या किसी अपर लेवल का जो गवर्नमेंट है उसके पे वो काम नहीं करेगा. ठीक है, ये वर्टिकल डिवीजन है. ऐसे आप कह सकते हो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट? Union government, state government and local government, you will see there is vertical division of power and one just come under another, but it is only for looking. But whenever we will work, think about the working, then we will find that there is not such system. There are different levels of the government, and at every levels they have their own rules and responsibility, right? And even one level's top above levels government will not prescribe and force to lower level government, right? So such type of, since at different levels government will work independently, that's why this is called federal form of government also. In details we will study the chapter 2 federalism, right? Dear students, the government at the different levels with a general government for whole country and government at the provincial or regional levels form a type of government that is federal government. मतलब इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, एक पूरे कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है और उसके बाद प्रत्येक स्टेट के लिए अलग गवर्नमेंट होती है जो स्टेट की प्रायोरिटी पे और स्टेट के इशूज पे वर्क करती है. इसलिए इस तरह के सिस्टम को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स. वही बात है, इस तरह के गवर्नमेंट में जितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होता है कि किस तरह से उनके ऊपर रूलिंग करना है. किस लेवल का जो गवर्नमेंट है उसको क्या क्या उसके लिए क्या क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फंक्शनिंग एरिया है, क्या सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, वो सारे डिफाइंड होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, राइट? बिकॉज यू नो whenever there is different government
एट स्टेट लेवल और यूनियन लेवल, दोनों जगह पर अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट होगी तो हो सकता है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस क्रिएट होती है। आप देखोगे तो ऐसे सिस्टम बनने के बावजूद भी प्रैक्टिकली आप देखते हो तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बार टकराव की स्थिति आई है। अब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टकराव की स्थिति आने के बाद क्या होता है, किसकी विक्ट्री होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है और ये बहुत ही पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। इस तरह का सिचुएशन अगर ना क्रिएट हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशंस तो क्रिएट होती है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में होगी और उसके लिए वो आंसरेबल होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए अपने एरियाज के लिए काम वर्क सेपरेट करेगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपना अपना अलग अलग क्या है, लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, और सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट जो है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट्स दिया गया है उस सब्जेक्ट पे ही वो कानून बना सकती है, वर्किंग कर सकती है। और कुछ ऐसे तीसरा एक कैटेगरी है जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, मतलब क्लियरली डिफाइंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कहता है एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि एग्जाम बेल्जियम में क्या हो गया, इन बेल्जियम द लीडर्स आफ्टर डिस्कसिंग लेट डाउन द फेडरल गवर्नमेंट विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993 1993 में बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस फेडरल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अगर यह देखा जाए तो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हमारा जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी उसी टाइम हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो अब इंडिया की सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग देख लें। ठीक है, तो इंडिया के सिस्टम में अगर हम देखें तो इंडिया में 3 लेवल में गवर्नमेंट वर्क करती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का चर्चा हम लोगों ने बेल्जियम के मॉडल में भी किया था। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका गांव की अगर बात करते हैं तो गांव लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मुखिया हो या सरपंच हो, इसलिए वो क्या है, आपके किसी वार्ड में अगर चापाकल का प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए क्या मोदी जी के पास यूनियन गवर्नमेंट में कंप्लेन करेंगे? क्या मोदी जी आकर के आपके वार्ड में एक चापाकल गड़वाएंगे? शायद ये संभव नहीं है। अगर मोदी जी ऐसे करने मतलब आई मीन द यूनियन गवर्नमेंट विल वर्क लाइक दिस, देन इट इज नॉट पॉसिबल द टेकिंग केयर एंड वेलफेयरनेस ऑफ एवरी रीजन्स ऑफ द पीपल। प्रत्येक गांव के लोगों की भलाई ऐसे संभव नहीं हो सकती। प्रत्येक गांव के लिए अब देखा जाए इंडिया की अगर बात करें तो 40 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी के पार्टिसिपेट, जो किसी कहीं या तो वार्ड मेंबर हैं या कहीं पर आपका मेंबर ऑफ पंचायत समिति है, मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति कह सकते हो। ठीक है, जिला परिषद है, ठीक है, एमएलए हैं, एमपी जे, लगभग ऐसे 40 लाख से ज़्यादा लोगों का टीम है। मीन्स 40 लाख से ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो परहैप्स दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? In federal form of government, there is much and more participation of people at different levels, right? So for succeeding the democracy, it is necessary that there should be implementation of the federal form of government. Then it is possible that every community, every group and every individuals of the citizens can be the part of the गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और हम हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन हम लोग समराइज करेंगे थोड़ा सा कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों में क्या किया गया है, सारे के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को क्लियर कर दिया गया है। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे यूनियन गवर्नमेंट से बहुत सारे पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के लोकल
लोकल लेवल गवर्नमेंट और कम्युनिटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे दिया गया है, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। एक बहुत बड़ा इशू था कि लोकल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, क्योंकि जब तक बजट नहीं होगा तो वो अपने एरियाज का डेवलपमेंट कैसे करेगा। इसलिए बहुत सारे इनकम जनरेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग किया जाता है, या यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग करती है, किसके लिए? लोकल लेवल के गवर्नमेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हो अपने अपने गांव में आपके पंचायत लेवल की जो सरकार होती है, शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सारे एग्जाम्पल है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कम्युनिटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के। इसको और डिटेल्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर में फेडरलिज्म में स्टडी करेंगे। आई थिंक आज आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी, राइट, एंड रेगुलरली जस्ट विजिट योर classroom and see video completely, right? See video completely, don't skip after seeing few parts, right? Thank you, have a nice day, and we will meet again in the next video.